Hello and welcome to Ignited Minds. Today it's 26th of August 2024 and I welcome you all to the Hindu newspaper analysis. In today's newspaper, we are going to see all these editorials in detail with both the prelims and mains parts covering together. Further, we will also see the PYQ which was asked in UPSC this year. We will also see that what is the static portion of all of these news articles, why PM Modi highlighted the concept of secular civil code in his Independence Day speech this year, and we will also see why are there more than 600 people uh, stranded in the airport of Sao Paulo, Brazil. We will also see a detailed discussion on the issue of rape in India because there are news coming from Kolkata and Assam also, and there is an in detail editorial about the reality of rape. Further, we will also see the other aspects of women exploitation and harassment at the workplace because this was the recent most issue which was highlighted by K. Hema committee, which was set up in 2017 and it has submitted its report recently. So let's begin the discussion with a UPSC prelims PYQ. This question was asked by UPSC in 2024. In this question, UPSC simply asked the simplest most question and 2024 जिस दिन पेपर था उस दिन it was Sunday on 16th of June 2024 and it was a mere coincidence that on the same day I was sitting at my home at my workstation making the key of this paper, and on the same day I ordered some apples from Blinkit. Those apples were apples imported from USA only. Those were US apples only. So see how coincidence and how things around you work for you to understand the concept. अगर आप aware हो तो आपको concept समझ आ जाएगा. अगर आप aware नहीं हो तो आप इस concept को हवा में उड़ा दोगे. Simple. India does not import apples from USA. Okay, I accept this thing that maybe there can be a chance that India जो है किसी एक कंट्री से फॉर एग्जांपल ग्वाटेमाला, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेनेजुएला, नॉट वेनेजुएला इज अ बिग कंट्री, स्मॉलेस्ट ऑफ द स्मॉल कंट्रीज घाना, ठीक है, यहाँ से हम एप्पल्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं या यहाँ से हम कोई चीज इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से हम कारपेट्स इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं, then this statement becomes dicey. But when it comes to a country like USA, a big country like Russia, China, USA, Saudi Arabia, these countries which have been the major trade partners of India since ages, Sri Lanka, Bangladesh, you cannot conclude on this statement. आप ये बोल ही नहीं सकते कि किसी एक बंदे ने इंडिया में कहीं से एप्पल इंपोर्ट कर लिया. हो सकता हो रिसेंटली कर लिया हो, आपने नहीं पढ़ा हो, कंट्री बहुत बड़ी है, ट्रेड बहुत बड़ा है ना. तो इंडिया डज नॉट इंपोर्ट एप्पल्स फ्रॉम यूएसए. दिस इज समथिंग एन एक्सट्रीम स्टेटमेंट which should be uh, like which should be understood, and जब आप इस स्टेटमेंट की लैंग्वेज पढ़ो तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए दैट दिस स्टेटमेंट इज टैम्पर्ड और इस स्टेटमेंट को गलत मार्क करना है कि ये गलत स्टेटमेंट है. नेक्स्ट, इन इंडिया द लॉ प्रोहिबिट्स द import of GMO or genetically modified food without the approval of the competent authority. ठीक है, अब अंडरस्टैंड वन थिंग, स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, ठीक है, योर आंसर, यू गॉट ऑलरेडी योर आंसर. इफ स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, आपका आंसर मिल गया क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो ही नहीं सकते. क्यों नहीं गलत हो सकते? क्योंकि ऐसा यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं है जो आपको बता रहा हो वो द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट. ठीक है,
use your brains and use your logical ability and develop the MCQ aptitude, that how to solve the MCQs. If you're facing such issues, you can contact me on the same. Why was this question asked? Because this was inspired from a news article of 24 only, जो फरवरी में एक न्यूज़ आई थी 2024 में ही, कि यूएसए से जो एप्पल्स आ रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग द एक्सपोर्ट्स फ्रॉम यूएसए आर इंक्रीजिंग एंड इट इज अराउंड 16 टाइम्स मोर देन द लास्ट ईयर। जो यूएसए से सेब आ रहा था यहाँ पे, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। That was the reason. And similar news article was there in news in 2023 also and 2024 also. This is the whole explanation to this question. You can go through it. And coming to the second statement, the GMOs and living modified organisms and their import of the GM food requires prior approval of genetically engineering approval committee, which is the correct statement. And this committee works under Ministry of Environment, Forest and Climate Change, not under the Department of Science and Technology. ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है और इसको समझना है. This was constituted by this ministry. The food products are also regulated by FSSAI. They are also regulated by FSSAI Act of 2006, and the food products are allowed, genetically modified food products are allowed only after the necessary approvals are given. That is the main reason behind the controversy of genetically modified brinjal, BT brinjal, है ना, कॉर्न, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स है जो बनाए गए हैं, वीट, ठीक है, बट ओनली बीटी कॉटन इज देयर, जो हमने अभी तक अलाउ किया है मार्केट में. Now, beginning with the discussion, there is a recent rule passed by Brazil, which aims to curb and decrease the immigrants. Okay, these restrictions from Brazil came to impose these restrictions on Asians and some Asian countries, in which India is also one of the country. However, the condition here and the key fact which you should understand is that the people who are seeking asylum in some countries, that they are refugees. See, this concept of refugee is in detail discussed in one of our videos only, in this session only. Lastly हमने डिस्कस किया था. इस न्यूज़ आर्टिकल पे अगर कोई एडिटोरियल आता है, बिकॉज आज का अपडेट ये है कि G20 समिट होने वाली है, तो उससे पहले मिस्टर जयशंकर एंड माउरो वियरा विल बी मीटिंग, और वो लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो अनडॉक्यूमेंटेड या ये जितने भी डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स होते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, जो इंडिया से हैं, 100 से ज़्यादा लोग इंडिया से वहाँ पे फंसे हुए हैं, तो इनका क्या करना है. ठीक है, वंस दे टॉक अबाउट दिस, देन इन अपकमिंग डेज, 2 या 3 दिन में हमारे पास एक एडिटोरियल आ जाएगा सेम चीज़ पे. Once we have that editorial, then we can discuss this thing of refugees in detail. But understand the key fact that there is an increase of 61 times the people who are seeking asylum in some other countries. What actually see happen is, आपने शायद डंकी मूवी देखी हो, नहीं भी देखी हो तो तब भी समझना है. What actually is happening, they are doing, first they go into some country illegally through illegal routes. ठीक है, वहां जाने के बाद वो एप्लीकेशन देते हैं कि हम लोग असल में अपनी कंट्री से भाग के आए हैं, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारी जान को वहां पे खतरा है. ठीक है, हमारे जितनी भी कम्युनिटी है, कास्ट है, कोई भी चीज़ है जिसकी वजह से हमें खतरा है हमारी जान को, तो हमें असाइलम दे दो यहाँ पे एज रेफ्यूजी. दैट इज द मेन कंसर्न. और वो एक इलीगल रूट है, वो हम सब ने देखा. अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया है, तो मैं बोलूँगा डंकी मूवी का एक आप समरी देख लेना, क्या था वो मूवी अबाउट व्हाट. ठीक है, अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इजी. कि आप किसी फॉरेन कंट्री में चले गए और वहाँ पे बोल दिया मैं अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सकता, बिकॉज देयर आई एम फेसिंग थ्रेट्स टू माई लाइफ. ठीक है, मेरी लाइफ खतरे में है, तो इसलिए मुझे वहाँ नहीं जा सकता हूँ मैं. नाउ दिस इज
इशू जो 10 महीने से वॉर यहाँ पे चल ही रही है, ये अभी ख़त्म नहीं होने वाली है। हमने रिसेंटली इसमें अपडेट्स भी देखे थे दैट हनीए का डेथ हो गया, डेथ किलिंग हो गया, हनीए का किलिंग हो गया। इसके दो अ, जो इसके बेटे थे, 3 बेटे एंड 2 ग्रैंड सन्स वर ऑल्सो किल्ड। ठीक है। इसके साथ साथ द चीफ ऑफ हिजबुल्ला, ही वाज आल्सो किल्ड ऑन द सेम नाइट ऑफ ट्यूसडे लास्ट मंथ। तो अंडरस्टैंडिंग दैट अभी ये वॉर जो है ये एस्केलेट हो गया है बहुत ज़्यादा, और अभी जो हमने 2 दिन पहले, कल संडे को और मंडे ये सैटरडे को सीज फायर का वायलेशन देखा, दैट दोनों साइड से इतने ज़्यादा मिसाइल्स चल गए, मोर देन 100 मिसाइल्स एंड ड्रोन्स ऑन बोथ द साइड्स। ठीक है। Israel is saying that they were targeting on civilians. What we need to understand is there are two things. One is this Ben Gurion International Airport, जो हमें याद रखना है that Ben Gurion is a international airport. If you do not remember that it's an airport, remember the city Ben Gurion. ठीक है, एक चीज हमें याद रखनी है बस। एंड दिस नॉर्दर्न इसराइल में हुआ था ये हमले, छोड़ दो इसको। नेक्स्ट इज कत्यूशु रॉकेट्स विच वेर यूज्ड। ठीक है, बस। If the term comes that what was Katyushu in news recently, it's a rocket. A 320 such rockets have been fired to Hezbollah. ठीक है, its attack involved more than 320 such rockets जो हिजबुल्लाह ने फायर किए हैं on the Israel side. ठीक है, rest we do not need to keep a note of it. Now a key highlight and a key update which we all must remember, because this is something ना जो बहुत ही क्रूशल है। ठीक है, जब ये के हेमा कमेटी ने रिपोर्ट अभी सबमिट किया था, तब ये ना हेडलाइंस में था। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे आ गया था। व्हाट इज दिस अबाउट? दिस इज अबाउट आर सोशल जस्टिस पेपर। ठीक है, तो सोशल जस्टिस में हम इसका क्या करेंगे? बेसिकली दिस इज एन एवरलास्टिंग टॉपिक, वुमेन, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन हरासमेंट एंड जेंडर डिस्पैरिटी एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, है ना, gender discrimination which we must understand. Now what Justice K Hema committee has suggested, and what is this committee about? This was basically constituted to understand that what is the actual female abuse or woman abuse or sexual abuse which women are facing in the cinema industry, particularly in the Tamil Nadu, this sorry, Tollywood, the southern film industry, Malayalam filmdom. ठीक है, now understand one thing. This committee, once it submitted its report, इन्होंने बोला दैट मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा हद तक वुमेन को यूज़ किया जाता है, उनके साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, उनसे फेवर्स लिए जाते हैं। एंड देयर वर टू थिंग्स विच द कमिटी हाईलाइटेड विच वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस डिस्कशन ओनली टुडे ओनली। वन, इट सेड दैट देयर आर सेक्सुअल ऑफर्स जिसके बगैर वहाँ पे काम नहीं चलता है, लाइक देयर आर प्रॉब्लम्स लाइक दिस। सेकेंड, इट सेड दैट देयर आर discriminatory practices against women in particular. First, they are being discriminated, and then they are being subjected and forced for these sexual offers. Now, once this report came out and the public policy forums में इस पे बात होने लग गई, और अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट, तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है, एक टीम बनाई है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स है, कुछ सीनियर सिटीजन्स है, सीनियर वुमेन है, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स है। दे विल बी इन्वेस्टिगेटिंग ऑन ऑल ऑफ दीज इश्यूज। ठीक है, कि क्या ये सच में है या नहीं। बट वाई इट केम इनटू हेडलाइंस? बिकॉज जो मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के टॉप दिग्गज लोग थे, उनने अभी रिजाइन करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, what is basically this sexual harassment and why we should understand it? See, this K Hema committee was formed in 2017. ठीक है, and it submitted its report to the government in 2019. Recently this report got a limelight. ठीक है, broadly this report talks about two categories of issues. One, I said, the sexual exploitation and the assault against women in cinema.
and second, the discriminatory practices which women lack. And even this report highlighted that जितनी भी यहाँ पे औरतें काम कर रही है, वुमेन एक्ट्रेसेस काम कर रही है, what they are facing is lack of basic facilities. Like अगर आप देखो तो यूपीएससी में एक केस स्टडी आया था अ, अभी कुछ साल पहले. आई डो नॉट रिमेम्बर द ईयर ऑफ दैट पेपर, बट इट वाज अबाउट द sugar cane industry, that you are supposed to be a DM of a district जहाँ पे शुगर केन इंडस्ट्री काफी पॉपुलर है, एंड यू कम टू नो दैट इस शुगर केन इंडस्ट्री में एक कॉन्ट्रैक्टर है who is employing women only in his field, and that too those women who are already having kids, जो अभी अनमैरिड होंगी या सिंगल होंगी, या तो वो उनको ले रहे हैं, सिंगल वुमन को जो अनमैरिड है, या तो वो उन वुमन को लेंगी ले रहे हैं लेबर पे जो एज्ड वुमन है, ठीक है, हु डू नॉट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ किड्स. And in such scenario, the contractor, is a discriminating against the women who are in the working age, but he's not employing them. Why? Because of their concerns. Like the women who are in their menstrual cycles, what they need is they need continuous breaks. ठीक है, they cannot work extra. ठीक है, and one more thing, they have the child, और जिनके वो कॉन्ट्रैक्टर उनको क्रैश की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कराएगा. ठीक है. नाउ व्हेन वंस यू कम इनटू दिस केस स्टडी एंड यू अंडरस्टैंड कि ऐसा हो रहा है यहाँ पे, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट में आप क्या करोगे? अब आप ये देखोगे कि और क्या प्रॉब्लम्स है. तो और ये प्रॉब्लम्स थी वहां पे सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, कि किसी भी वुमन को ये अलाउड ही नहीं था कि वो कहीं जाके लाइक अपने आप को लाइट फील कराए. ठीक है. ना वॉशरूम्स की फैसिलिटी थी, ना पानी की फैसिलिटी थी, ना सैनिटेशन की फैसिलिटी थी, बिकॉज दे आर वर्किंग इन एन शुगर केन इंडस्ट्री, एंड दे कैन नॉट गो फॉर ओपन डेफिकेशन ऑल्सो, बिकॉज ओपन डेफिकेशन में वहां पे खतरा होगा इंसेक्ट्स का, स्नेक्स का. Now being a DM, you come into contact of this case study, and you need to understand that how will you deal with this contractor, and how will you erase this menace of discriminatory practices against the woman. तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो कंडीशन वुमेन पे हो रही है, किस में? सबसे लोवेस्ट, लाइक लेबर क्लास में, शुगर केन इंडस्ट्री में, और वही फैसिलिटीज दी वुमेन आर लैकिंग इन इवन इन दी सिनेमा इंडस्ट्री. सो दिस हाईलाइट्स कि कितना एक टोन में चलता है, एक सिमिलर पैटर्न पे चलता है दी डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, even in the top levels and in the bottom levels also. This discrimination has no face. It is single faced discrimination. हर जगह पे same problems हैं. And similar problem of lack of basic facilities was highlighted by D.Y. Chandrachud also in the lower judiciary. ठीक है, रिसेंटली उन्होंने भी हाईलाइट किया था ये चीज कि लोअर जुडिशरी में ये प्रॉब्लम है कि वहां पे जो वुमेन जजेस है, वुमेन एडवोकेट्स है, they cannot go and use the public toilet, and we are facing this issue of sanitation. ठीक है. तो see how much deep it is, and why shouldn't we highlight it in our answers, and why don't you expect that this can be a question directly or indirectly in your mains. ठीक है. Now the culture of the assault, it talks about, this editorial talks about that how assault actually works, कि आप वुमेन के अगेंस्ट में हो क्या रहा है. ठीक है, अंडरस्टैंड इट. द प्रॉब्लम इज नॉट रेप बेसिकली. ठीक है, रेप इज द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स. इट इज द क्रूडेस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस अप्रोच. व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच इज आप छोटे छोटे लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, घर के लेवल पे, ठीक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में, आप अपने एम्प्लॉयज के सर्कल में, कलीग्स के सर्कल में एक धारणा बना लेते हो, पेट्रियार्किकल सोसाइटी बना लेते हो, वो कंजर्वेटिव माइंडसेट क्रिएट कर लेते हो. ठीक है, स्टीरियोटाइप्स बनाते हो, और स्लैंग्स यूज करते हो. ठीक है, अगेंस्ट द वुमन. एंड
ऑब्जेक्टिफाई करते हो वुमेन को. दीज आर द इश्यूज लाइक यूजिंग स्टीरियोटाइप्स, स्लैंग्स, ठीक है, passing comments on women, that abusive language which you use in your circle, that is the main reason. And the final culmination of all of these practices comes in the form of rape. Then happens these things. ठीक है, रेप ऐसे ही नहीं होता है. The culture of assault begins from the individual, then it transforms into a friend circle, then a group, then a larger society, and then these incidents happen. Similarly, NCRB has also highlighted that there are around 31,000 cases of rape which are reported in 2022 in India. And every 16 minutes, a rape is uh, reported. And recently, we also saw that not only this, there is one more incident where there were more than 100 of rapes. I'll show you this incident. This incident, take care. There were more than 100 rapes and women were raped in this case, but only a few came to limelight. Similarly, अगर आप बोल रहे हो यहाँ पे that only one rape is reported in 16 minutes, it means that the one rape is reported. It does not mean that actually only one rape is happening. More than that is happening on the ground. The condition is due to societal pressure, due to issues which women face, because they too have to live with this issue. They too have to live with this taboo. I'll show you one more thing. This lady who was in this rape case, she was raped in 1992. It took her 32 years to ask for justice and to have justice. Okay, 32 years. And she shouted at the public prosecutor and she said that I am a grandmother now. Can you understand that I have to lie at my house, that I am going somewhere else and I have to come and testify in the court? This is the issue. This is the gravest of the issues. Okay? This editorial also highlights the Vishaka guidelines. It says that in the context of the workplace assault in Vishaka versus the others, Vishaka and others versus the state of Rajasthan 1997 case, the writ petition which was filed at that time asked for to enforce the rights of the working woman against the sexual harassment. 1997 का ये केस है, विशाखा गाइडलाइंस वाला केस जो है, उसके बाद 16 साल लगे और उसके बाद एक्ट आया 2013 में, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट, प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन एंड रिवर्सल ऑफ these conditions. This act provided for a key component, that was the internal complaints committee. This internal complaints committee has to be there in every workplace which has a certain number of employees. ठीक है, कोई भी वर्कप्लेस. अब वर्कप्लेस क्या होती है? वर्कप्लेस सेक्शन 2 ऑफ दिस एक्ट, दैट इज सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्कप्लेस एक्ट के अंदर सेक्शन 2 में वर्कप्लेस को डिफाइन किया गया है. एंड वर्कप्लेस का डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है. 10 लोगों से ज्यादा जहां पे भी एम्प्लॉइज हो, वहां पे इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए. ठीक है. एंड इन दिस मैनर फिल्म इंडस्ट्री ऑल्सो कम्स अंडर दिस रेगुलेशन. फिल्म इंडस्ट्री में भी आईसीसी होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए. बट हेमा कमेटी, जस्टिस के हेमा कमेटी हाईलाइटेड दिस थिंग कि ये जो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है, ये हमारे यहाँ इस फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करेगी. इट्स नॉट सूटेबल फॉर इट, बिकॉज इवन द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में भी वही चीज होगी कि वहां उसके जो मेंबर्स होंगे, दे वोंट बी एबल टू फंक्शन इंडिपेंडेंटली against those who are already having nexus of crime against women. ठीक है. What हेमा कमेटी recommended is an independent forum. इन्होंने बोला एक independent forum हमारे पास होनी चाहिए which will deal with all the problems which are faced by women. ठीक है. Next is the registration of cases. The report which actually is highlighting here about the
दिस की हम कमेटी रिपोर्ट, इट हाईलाइटेड सम नेम्स, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी विक्टिम्स है और जिन्होंने बताया कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, दे यूज्ड मास्किंग ऑफ दीज सर्वाइवर्स, ठीक है। व्हाई? बिकॉज अगेन द सेम थिंग, taboos and stereotypes. Next, this editorial talks about the Nipun Saxena case. Nipun Saxena case 2018 का केस है. It says that Supreme Court explained the importance of penalization of the disclosure of names. कि आप ये जो विक्टिम्स होते हैं, जिनके साथ ये दुर्घटना हुई होती है, जिनके साथ जिनने ये चीज फेस की होती है, उन लोगों के नाम आप ऐसे ही नहीं ले सकते, ठीक है। उनके नाम को लेना या उनके नाम को मास्क करना इज नेसेसरी, एंड सिमिलर प्रोविजंस आर देयर इन भारतीय न्याय संहिता. तो दिस पॉइंट कैन बी देयर आस्क्ड इन योर प्रीलिम्स पार्ट, ठीक है, नॉट इन द मेंस. रेस्ट ऑफ द डिस्कशन वी आर हैविंग फॉर मेंस, ठीक है. आई एम टेलिंग यू व्हाट इट इज, ठीक है. आईसीसी किस एक्ट के अंदर आती है, दिस इज आल्सो अ प्रीलिम्स फैक्ट, ठीक है. नाउ व्हाट दिस एडिटोरियल सजेस्ट्स इज, हमें करना क्या चाहिए, ठीक है. हमें सबसे पहली चीज करनी चाहिए दैट सेंसिटाइजिंग द मैटर, ठीक है. बिकॉज having right to privacy and not violating and not masking the names of these people is against the right to privacy, ठीक है. पहली चीज, के हेमा कमेटी was actually formed after the sexual assault allegations were there, and उसकी ट्रायल जो है अभी तक चल ही रही है, ठीक है. Understand that these survivors have to go through a lot of pain and trauma, and this Justice Hema Committee has highlighted the issue from its core. कि आप देखो, हमने शुगर इंडस्ट्री जो लेबर क्लास इंडस्ट्री है, यहां पे भी देखा क्या प्रॉब्लम्स है. जुडिशरी, लोअर जुडिशरी, सेम प्रॉब्लम. फिल्म इंडस्ट्री, सेम प्रॉब्लम. अंडरस्टैंड हाउ मच डीप ऑफ अ प्रॉब्लम इट इज, द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. दिस पॉलीग्राफ टेस्ट, I'll come back to this editorial once we are done. See, this rape only, I brought this act also because a 14-year-old girl was raped in Assam, gang raped. ये कल की न्यूज़ है, अभी कोलकाता का आर्टिकल चल ही रहा है, ठीक है. दिस आर्टिकल, ये 1992 का रेप केस है, अभी जाके इसको जस्टिस मिला है. 32 years इट टुक टू हैव जस्टिस, ठीक है. यहाँ पे दो चीजें हाईलाइट की गई है जो प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. वन इज दिस खादिम, हु इज अ खादिम, ही इज अ प्रीस्ट इन दरगाह, लाइक अ पंडित इन टेम्पल, द खादिम इज प्रीस्ट इन दरगाह, ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज दरगाह दीवान, ही इज द स्पिरिचुअल हेड ऑफ द दरगाह, ठीक है. दरगाहs आर द स्पिरिचुअल हॉस्पाइसेस. they these dargahs, what they hold is the last remains, the bodies of the Sufi saints. They are buried uh, in the graves here, and then the dargah is built on that, ठीक है. तो सबसे जो कोर एरिया होता है वहां पे वो ग्रेव होती है किसकी, इस इवन दिस ग्रेव can have either body of that Sufi saint or some items of that Sufi saint, ठीक है, like his clothes, his stick, or his footwear, or any of kind of such thing dargah can hold, ठीक है. तो those hospices, basically why these dargahs were built, these were built around the area जहाँ पे ये सूफी सेंट्स आके बैठे और उन्होंने वो अपना ज्ञान देना शुरू किया, उनने वहां से अपना काम करना शुरू किया, लोगों को जोड़ना शुरू किया, इकट्ठा करना शुरू किया, तो वहां पे ये दरगाह बनाई गई थी. These 2 points are important for our Bhakti and Sufi movement, and particularly for our art and culture. One thing. Second thing is this Khwaja Moinuddin Chasti is a Sufi saint, which we will be dealing in Bhakti and Sufi movement. Totally different. He is from the Chasti Silsila. Remember what is this Chasti? Chasti is a Silsila. Silsila is a school of thought, a lineage, a spiritual lineage. Okay, there were
more than four such silsilas, in which Chisti, Qadri, Sohrawardi, uh, and some other were there. So remember it. Khwaja Muinuddin Chisti was from, his name was Khwaja, this Muinuddin, and he was from this silsila only, the spiritual lineage. Okay, these are the prelims points, but what are the mains points? This. Okay, how this case took 32 years for justice. Done. Next are some more articles about rape only. Okay, one is this polygraph test. What is this polygraph test? Polygraph test is basically, ये अभी न्यूज में ही क्यों है? बिकॉज जो कोलकाता रेप मर्डर केस हुआ, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स ने जो द गर्ल, द विक्टिम who was brutally raped and murdered, we all have been protesting for that. We all have been condemning the act, the brutal act. The doctors who had a dinner with the victim that night, they all went for this test key, for the information to be collected by the CBI and investigation agencies. But understand that once you have to go for this test, you need to give your consent. ठीक है, consent to the test. Before consent, this test cannot be taken. What is this polygraph test basically about? It is a lie detector. ठीक है, लाई डिटेक्टर होता है. लाई डिटेक्टर क्या काम करता है यहाँ पे? इट रिकॉर्ड्स, आपकी बॉडी पे बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाते हैं. वो सेंसर्स क्या काम करते हैं? वो फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स बताते हैं. लाइक आपका ब्लड प्रेशर, आपकी पल्स, आपका रेस्पिरेशन, सांस लेने का तरीका, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी, कंडक्टिविटी, कितना इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, नहीं होता है, कोल्ड पड़ रही है स्किन, गर्म हो रहा है इंसान, गुस्सा आ रहा है इंसान को, वो चीजें. एंड ये सारे पैरामीटर्स जो है, ये सारे पैरामीटर्स जो है नोट डाउन किए जा रहे होते हैं इस मशीन के द्वारा. एंड देन all of these parameters are then produced on a polygraph, printed on a polygraph. ठीक है, जिसपे आपने देखा होगा ऐसी 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 कुछ आपकी वो मार्किंग्स आती है, दैट वेयर डिड द पर्सन्स बीपी वेंट हाई, वेयर डिड वेंट लो, उसके बाद पल्स कहाँ पे ऊपर गई, कहाँ पे नीचे आई. ठीक है, तो एक्चुअली में ये सारे पैरामीटर्स तब नोट किए जा रहे होते हैं जब इस पर्सन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल सीबीआई ने एक पर्सन ए को लिया, उसको एक मशीन पे बिठाया जिसको हम लाई डिटेक्टर बोलते हैं. एंड देन उसके ऊपर बहुत सारी वो, ये आपने मूवीज में बहुत ज़्यादा देखा होगा, तो आप अगर आप एक बार सर्च कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा पॉलीग्राफ टेस्ट क्या है. जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज द कंसेंट पार्ट. ठीक है, दैट यू नीड टू गिव योर कंसेंट फॉर दिस. एंड इट वाज फर्स्ट डन इन 19th सेंचुरी बाय द इटालियन क्रिमिनोलॉजिस्ट, जिसका नाम था जिसका नाम था Cesar Lombroso. Sorry for this glitch. And not only this polygraph test, there are some other tests like narco analysis test and the accuracy of other tests, brain mapping, and in which in the brain mapping particularly we
consider recording the anatomy of brain and then how brain functions actually. That is something which is a part of tech, but legal admissibility of polygraph test. Basically, this was ये जो पॉलीग्राफ टेस्ट है इसको चैलेंज किया जा रहा था आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के ऊपर, दैट पॉलीग्राफ narco analysis and brain mapping tests which are conducted without the consent are actually violating the article 20 clause 3. That is why the consent is important, and all the seven have given here the consent. Remember this case. This editorial we already discussed. Then who are these civic volunteers in West Bengal? These civic volunteers are basically village police. ठीक है, ये ममता गवर्नमेंट एक्चुअली बहुत पहले 2011 में 2010-11 में लेके आई थी एक स्कीम कि हम लोग लोकल लेवल पे सिविक वॉलंटियर्स को उठाएंगे, वो हेल्प करेंगे पुलिस की. दीज वॉलंटियर्स शुड बी द रेजिडेंट्स ऑफ द area only, and then we will induct them with some training and all, and a stipend of 9,300 rupees will be given to them. Why these civic volunteers are in news? Because the main accused of this Kolkata rape case, RG Kar Medical College case, is a civic volunteer only. ठीक है. Lastly, we also need to understand the Justice Verma Committee report and what actually Justice Verma Committee highlighted about the marital rape. सबसे पहले this brutal rape जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, the Justice Verma Committee recommendations which led the amendment of criminal laws in 2013 specifically was not inclined to recommend the death penalty. But 2013 और 2013 के बाद जितने भी अमेंडमेंट्स हुए उसमें हुआ क्या? सबसे पहली चीज, आईपीसी के अंदर सेक्शन 376A एंड सेक्शन 376E इसके अंदर बोला गया दैट वो लोग, वो कॉन्विक्ट्स जिन्होंने ग्रेव क्राइम किया होगा ऑफ गैंग रेप विद अ विक्टिम ऑफ लेस देन 12 इयर्स ओल्ड, ठीक है, और अ विक्टिम ऑफ लेस देन 16 इयर्स ओल्ड. अंडरस्टैंड, वो क्रिमिनल्स जो गैंग रेप में इन्वॉल्व थे, पहली चीज, उस गैंग रेप में जिसमें विक्टिम या तो 12 साल से छोटा था या तो 16 साल से छोटा था, इनको या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना चाहिए या तो डेथ पेनल्टी देनी चाहिए. तो डेथ पेनल्टी एज अ पनिशमेंट वाज included here. Now understand death penalty, and there is one more term here which is persistent vegetative state. Persistent vegetative state is like इतना ज्यादा डैमेज दैट इसके बाद ये जो विक्टिम है शी इज टोटली डिस्ट्रॉयड एज अ वुमन. ठीक है, अंडरस्टूड. नेक्स्ट, these punishments and these laws, the corresponding laws of these have been involved in भारतीय न्याय संहिता also. तो सिमिलर जो प्रोविजंस आईपीसी में थे वही प्रोविजंस हमने भारतीय न्याय संहिता में लाने की कोशिश की है. और भारतीय न्याय संहिता में ये लिखा गया है दैट अ गैंग रेप ऑफ अ वुमन अंडर द एज ऑफ 18 years इज द डेथ पेनल्टी. ठीक है, जो 18 साल से नीचे की कोई भी औरत के साथ गैंग रेप करेगा उसका पनिशमेंट क्या होगा? डेथ पेनल्टी. सिंपल. ठीक है, तो अंडरस्टैंड इट. जो इससे पहले के पनिशमेंट थे, इट वाज डेथ पेनल्टी फॉर अ विक्टिम विच इज लेस देन 18 years old एंड अ विक्टिम लेस देन 16 years old, उसके लिए था लाइफ इम्प्रिजनमेंट. एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स द नेचुरल लाइफ स्पैन, जो अभी पूरी लाइफ बची हुई है उसका. ठीक है, इसके बाद हमें यह भी समझना है दैट व्हाट डिड द वर्मा कमिटी सजेस्टेड. वर्मा कमिटी एक्चुअली एनहांस्ड द सेंटेंसेस फॉर रेप. इनने बोला दैट 7 साल से बढ़ा के इसको 10 साल कर दो और 20 साल कर दो एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दो.
बट वर्मा कमिटी ने डेथ पेनल्टी नहीं बोली इन केस ऑफ रेप. सेकेंड इज अबाउट मैरिटल रेप. मैरिटल रेप पे a marital rape or other punishment between other relationship between the perpetrator or the victim is not a valid defense against the crimes of the rape or sexual violation. It clearly said कि a rapist is a rapist regardless of the relationships with the victim. कि इन्होंने बोला that you should criminalize the marital rape, but गवर्नमेंट ऑफ द डे उसके बाद 2013 के बाद जितनी भी गवर्नमेंट्स आई अभी तक ये चीज इम्प्लीमेंट नहीं हुई है. ठीक है. एंड सिमिलर थिंग अंडर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता हमने यही चीज इनकलकेट की है दैट सेक्सुअल इंटरकोर्स और द एक्ट्स बाय अ मैन with his wife, the wife not being under 18 years old is not a rape. 18 साल से ऊपर की अगर किसी इंसान की वाइफ है, ठीक है, एंड देन दे आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, it does not mean that the wife is having that you call it this rape or marital rape. The provision of marital rape or criminalization of marital rape is not included in Bharatiya Nyay Sanhita. Next important point is the gender rights. ये सारे के सारे points prelims के लिए बहुत important है. Keep these things in mind. ठीक है. Next important thing is the gender rights. The Verma committee pointed out that how can you empower a woman? It says that if you need to or you want to empower a woman, you should not limit itself to political equality, because the empowerment is holistic in nature. यहाँ पे social, educational, economic, ट्रू एम्पावरमेंट हर साइड से आना चाहिए, हर साइड की इक्वालिटी कंसिडर की जानी चाहिए. एंड दिस इज व्हाट यू कैन यूज एज योर कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन इन सच आंसर्स. तो ये वाला पॉइंट आपका मेंस का होगा. एंड बाकी जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए दे आर प्रीलिम्स नेचर. ठीक है. जस्टिस वर्मा कमेटी ने एक रिकमेंडेशन दिया था अबाउट द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ दिस मैरिटल रेप. इट इज समथिंग विच वी कैन कंसिडर राइटिंग इन मेंस ओनली. ठीक है. if the question specifically which has a very less chance to be asked कि एक particular question marital rape के ऊपर आ जाए, क्योंकि ये अभी a matter which is yet to be legislated on, which is yet to be debated on, तो इसमें नहीं करते हैं उतना ज़्यादा. मेंस में क्वेश्चन ना आने के ज़्यादा चांसेस है. बट अगर क्वेश्चन आता है then also we have a point that how Verma committee recommended on this thing and what actually is there in the laws. बीएनएस के अंदर क्या प्रोविजन है वो भी हमने देखा, और इससे पहले क्या प्रोविजन है वो भी हमने देखे. नेक्स्ट इज अबाउट द सेक्युलर सिविल कोड, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाईलाइट किया था इन वन ऑफ हिज इन दिस ईयर्स इंडिपेंडेंस डे स्पीच 15 अगस्त को. एंड ही सेड द सेक्युलर सिविल कोड is actually what India needs. What is the secular civil code and how we can understand the concept of secular civil code? We should first of all understand the Article 44 of Indian Constitution, which talks about the Uniform Civil Code. And Article 44 basically imposes, you can say, a directive, a guideline, and a responsibility on state to bring in the provisions of Uniform Civil Code for all the civil matters, whether it's marriage, divorce, adoption एंड इनहेरिटेंस वगैरह जितने भी मैटर्स हैं, ये सारे मैटर्स पे आपको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा. ठीक है. अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट व्हाई डू वी नीड सच सिविल कोड और व्हाई डू वी नीड a uniform civil code, and what is the difference between what our prime minister is asking for is secular civil code, and what is the difference between this uniform civil code and secular civil code. Secular civil code should be more inclusive in nature than exclusivity. What is exclusivity in Uniform Civil Code? That it says everybody is subject to the similar civil code. Okay. While as a secular civil code can consider key demands and key facts of all the people who are involved. Okay. It should be inclusive in nature. It should consider all the demands. Understanding this, Prime Minister actually said that it is basically Dr. Ambedkar's
vision which asked for this civil code, that is the secular civil code. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने देखे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड बस हमें पता है, पोर्चुगीज सिविल कोड है हमारा जो लगा हुआ है गोवा दमन एंड दीव एडमिनिस्ट्रेशन में, 1867 में ये बनाया गया था और 1962 में इसको दोबारा रिक्रिस्टाइन किया गया. What are the arguments which support a uniform civil code? सबसे पहली चीज, जुडिशियरी हैज बीन हाईलाइटिंग दिस इशू, क्या हमारे पास ये होना चाहिए, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड. एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो हाईलाइटेड दैट देयर शुड बी अ क्लियर स्टैंड ऑन सेक्युलर सिविल कोड विच इज एन इशू ऑफ नेशनल यूनिटी, क्योंकि यहाँ से हमारे नेशन में यूनिटी आ सकती है, ठीक है. दिस इज a really positive step for the nation at large, ठीक है, having a civil code at the national level, ठीक है. And Supreme Court in the Shah Bano case 1985 called on the implementation of uniform civil code, ठीक है. And what are the arguments which oppose the civil code? Basically it was the law commission of India which highlighted कि it is neither necessary nor desirable to have a uniform civil code at this stage, ठीक है, clear. Now what should be the way ahead for us, either to have civil code, uniform civil code or not? The key ahead is the secular civil code. How we can ensure this? By inculcating the Dr. B.R. Ambedkar's vision and the inclusivity of all the diversity which India is having. Okay? This article is important to understand. Why? Because the key thing which is highlighted by the author here is uh, it is a very dangerous menace through which India is going. सबसे पहले हमारा तो एनसीडी का बर्डन बहुत ज्यादा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर पे, ठीक है. नेक्स्ट इज, देर इज वन मोर थिंग विच इज बीइंग प्रमोटेड अमंग द यूथ. यूथ ही नहीं, छोटे बच्चों में ये बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है इसका, जिसको हम बोलते हैं ई सिगरेट्स, वेपिंग पेन्स, एंड्स या इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स या एच एन बीज, दैट इज हीट नॉट बर्न. ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होती है, ठीक है, सिंपल डिवाइसेस विच आर यूज्ड टू vape. Basically what these devices look like are a kind of pen जो वेपिंग में यूज होती है, ठीक है. व्हाट इज दिस वेपिंग? होता क्या है इसमें? Similarly, this device is filled with nicotine or a substance which is having nicotine, flavored with different flavors like strawberry, cotton candy, pop rocks, lemonade. These marketing tactics are used to actually grab the market. जो छोटे बच्चों का मार्केट है, जो यूथ का मार्केट है, जो टीन्स का मार्केट है, टीन एज में जो बच्चे हैं उनका मार्केट है, उसको टैप करने के लिए, ताकि उनको ये लत लगाई जा सके कि वो वेपिंग सीखे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ स्मोकिंग. और ये स्मोकिंग के बदले वेपिंग क्यों आया था? इसलिए आया था बिकॉज इट वॉज पोर्ट्रेड एज अ हेल्दी ऑल्टरनेटिव, कि इससे आपको जो है कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है, इससे जो है डिजीज के चांसेस कम हो जाएंगे. बट दैट इज नॉट एक्चुअली द केस, because if you see, the Center for Disease Control and Prevention in USA has highlighted that e-cigarettes were the most commonly used tobacco product among the middle and high school students in USA, ठीक है. इसके साथ साथ there are other issues like mental health, getting addicted to cannabis, cocaine and heroin
Also, the Australian Institute of Family Studies has highlighted the negative impacts of using e-cigarettes on the new age entrants. That is why this author, a clinical psychologist and a founder of Happiness Studio, she highlights this thing, that how the lives are these children are being targeted. ठीक है, बिकॉज दिस थिंग इज नाउ एसोसिएटेड टू अ सोशल रेप्यूट, कि आपके ग्रुप में आप कूल तब तक नहीं बन पाओगे जब तक आपके पास एक वेप नहीं होगा. ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज नाउ बीइंग अ न्यू कूल. ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये सोसाइटी की नई प्रॉब्लम्स हैं, एंड दीज आर न्यू एज गेटवेज विच ओपन अप द बिगर हेल्थ थ्रेट्स फॉर द सोसाइटी. ठीक है, अब ये कंडीशन या इस एडिटोरियल का हम क्या कर सकते हैं. सबसे पहली चीज, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर जीएस पेपर 2 हेल्थ. ठीक है, हेल्थ इज अ टॉपिक वेरी मच इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चंस आते हैं. हेल्थ केयर इज इट इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड डिजीज आर one more important topic for us. All of this editorial has recommendations which we can use for such means answers. Done. Keep these things in mind and note these things. जैसे मैंने यहाँ पे एक यूएस का स्टडी बताया और एक ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ फैमिली स्टडीज का स्टडी बताया, दो चीजें. एंड सेकंड इज हाउ द टैक्टिक्स आर यूज्ड टू टैप इन द मार्केट. ठीक है. Lastly, we need to understand the UPS, that is Unified Pension Scheme. ठीक है, what is this Unified Pension Scheme? This was basically introduced by the government of India on August 24, 2024. This replaces the 21-year-old national pension scheme जो हमारे पास अभी तक चल रही है पेंशन स्कीम, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम. और अब नेशनल पेंशन स्कीम के बदले दूसरी पेंशन स्कीम आएगी जिसका नाम है क्या, यूनिफाइड पेंशन स्कीम. अभी जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ये क्या काम करेगी और क्यों हम लेके आ गए. सबसे पहला काम जो इसके फीचर्स है, सबसे पहला फीचर इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम का, यूपीएस का सबसे पहला फीचर है दैट इट गारंटीज, इट प्रोमिसेस टू गारंटी एम्प्लॉइज अ पेंशन ऑफ 50%. ठीक है, कि जब एक एम्प्लॉय रिटायर होगा, 50% ऑफ लास्ट ड्रॉन सैलरी will be given as a lifelong monthly pension to the employee after retirement. ठीक है. Next thing is dearness relief. This pension will also include a periodic dearness relief hike with respect to inflation trends. मतलब क्या है इस चीज का, मतलब ये है, एक तो आपको 50% जो आपने लॉस्ट ड्रॉन सैलरी जब आप रिटायर होगे, रिटायरमेंट के लास्ट के महीने में जो आपकी सैलरी होगी, उस सैलरी का 50% आपका पेंशन रहेगा रिटायरमेंट के बाद. पहली चीज. दूसरी चीज, जितना भी आपका पेंशन होगा उस पेंशन को पीरियोडिकली रिवाइज किया जाएगा और इंक्रीज किया जाएगा उसका डियरनेस अलावेंस. ठीक है, डियरनेस अलाउंस इसलिए इंक्रीज किया जाएगा ताकि वो इन्फ्लेशन के साथ आपको ज्यादा पैसा दिया जाए, ताकि आप इन्फ्लेशन से बचने के लिए उस पैसे को यूज करो. ठीक है, तो इन्फ्लेशन का भी ध्यान यहाँ पे रखा गया है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फैमिली पेंशन. इन केस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट की, किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, देन फैमिली को पेंशन मिलेगा. कितना पेंशन मिलेगा, 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन. जो एम्प्लॉय को पेंशन मिलने वाला था उसका 60%. ठीक है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द सुपर एन्युएशन पे आउट.
दिस विल बी अ लंप सम पेमेंट इन एडिशन टू द ग्रेच्युटी बेनिफिट्स। जब इंसान रिटायर होता है ना, तो उस टाइम पे उसको ग्रेच्युटी मिलती है। ठीक है, एक सम मिलता है, एक लंप सम अमाउंट मिलता है, पैसा मिलता है कि आपने इतने साल सर्विस दिया, तो इन सच ग्रैटिट्यूड हम आपको इतना पेमेंट कर रहे हैं। वो पेमेंट एक किस्म का ग्रैटिट्यूड होता है, दैट इज अंडर द ग्रैट्युटी एक्ट, रेगुलेटेड अंडर द ग्रैट्युटी एक्ट। एंड उस ग्रेटिटी के साथ ही इस इंसान को, जो गवर्नमेंट सर्विस में था, अब उसका रिटायरमेंट आ गया है, उस टाइम पे उसको एक और पे आउट मिलेगा, एक लमसम पेमेंट मिलेगी ग्रेटिटी के अमाउंट के साथ। ठीक है, एंड अ गारंटीड मिनिमम पेंशन विल बी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज पर मंथ फॉर दोज government employees who have worked in government for 10 years in सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। ठीक है, नाउ अब इतना सारा पेंशन मिलेगा, इतना सारा पैसा मिलेगा, तो एक एम्प्लॉय को कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा इस स्कीम के लिए, या फिर गवर्नमेंट जो है खुद ही देगी सारा पैसा? तो एम्प्लॉयमेंट का कंट्रीब्यूशन, ये एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉय आज है, जो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर हो जाएगा, उसको 10% ऑफ द सैलरी, जो उसकी आज की करंट सैलरी है, उसका 10% कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा किधर? यूपीएस के अंदर। नेक्स्ट, 10% कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी सैलरी का एम्प्लॉय देगा, और गवर्नमेंट 18.5% उसकी सैलरी का, जो ये एम्प्लॉय है उसकी जितनी भी सैलरी है उसका 18.5% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, किसमें? इसी यूपीएस के अकाउंट में। तो इस एम्प्लॉय का अगर आप देखो तो टोटल मिला के 10% उसने खुद दिया, गवर्नमेंट ने 18.5% दिया, मतलब 28.5%। अगर एक इंसान की सैलरी एक आप मान लो 10,000 रुपये है, ठीक है, तो 2,850 रुपये इसका हर महीने जाएगा यूपीएस में, हर महीने जाएगा। ठीक है, यूपीएस में। एंड देन वंस ही गेट्स रिटायर्ड, उस टाइम पे उसको एक तो सुपर एनुएशन पे आउट मिलेगा, मिनिमम पेंशन मिलेगा, ग्रेट्युटी अमाउंट मिलेगा, और 50% का पेंशन मिलेगा अगले पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, अब करना क्या है अभी? तो देर विल बी दिस नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, जो अभी तक चल रहा था, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हुआ था, 2004 में स्टार्ट हुआ था इंप्लीमेंट करना। दैट वाज द एनपीएस लिंक्ड पेंशन पे आउट टू, जितना भी आपका एक्यूमुलेशन होगा, पूरा जितना आपने कंट्रीब्यूट किया होगा, एंड देन उसको इन्वेस्ट किया जाएगा। अब एम्प्लॉयज को स्विच ऑप्शन दिया जाएगा, जिन्होंने 2004 के बाद एनपीएस ज्वाइन किया था। ठीक है, और वो भी लोग जिन्होंने 2004 के बाद ये एनपीएस ज्वाइन करके रिटायर भी हो गए थे। ठीक है, इन दोनों लोगों को ये ऑप्शन दिया जाएगा कि वो स्विच कर सकते हैं, एनपीएस से उठ के यूपीएस में आ सकते हैं। ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 99% लोगों के लिए ये बेनिफिशियल ही रहेगा वहां से यहाँ आना। ठीक है, तो 10% इनको सैलरी का यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। तो दिस वाज यूपीएस। लास्टली देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ sonoluminescence. What is sonoluminescence? Sono is sound, luminescence is a light, and luminescent, how sound can be uh, how sound can create an effect of light. ठीक है, साउंड से, साउंड और लाइट का आपस में क्या कनेक्शन है? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सोनोल्यूमिनेसेंस। बेसिकली होता क्या है? दो जर्मन साइंटिस्ट्स, दो जर्मन इंजीनियर्स, जो सोनार को रीड कर रहे थे। व्हाट इज सोनार? सोनार इज बेसिकली अ टेक्नोलॉजी जिसमें साउंड वेव्स के थ्रू बैट्स जो है नेविगेट करते हैं। दे रिलीज सम साउंड वेव। ठीक है, वो एक आवाज निकालते हैं। वो साउंड वेव किसी चीज से टकराती है, वापस आती है, उनके कानों तक पहुंचती है। देन दे रिकॉग्नाइज उसकी फ्रीक्वेंसी से कि ये किस चीज से टकरा के आई है। इज दैट अ लिविंग थिंग? वो हार्ड सब्सटेंस है, रॉक है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए?
वो पेड़ है, पत्ता है, कहाँ से जाना चाहिए, कहाँ से नहीं जाना चाहिए, दैट इज हाउ बैट्स वर्क। एंड दिस सोनार इज यूज इन आर शिप्स ऑल्सो विच नेविगेट द ओशियन। ठीक है। और बहुत सारे और यूजेस है सोनार के। अब ये लोग क्या कर रहे थे, ये सोनार को स्टडी कर रहे थे एंड इन्होंने देखा दैट एक छोटा सा वाटर बबल है। ठीक है। अब देखो, एक छोटा सा वाटर बबल है। इस वाटर बबल में अगर कोई साउंड ट्रैप हो गई है, ठीक है, व्हेन अ स्मॉल बबल ट्रैप्ड इन अ लिक्विड इज हिट बाय अ पावरफुल साउंड वेव। ये एक छोटा सा बबल है जो एक बहुत ही बड़े अ, पानी के पानी में ट्रैप हो चुका है नीचे। ठीक है। अगर आपको याद हो तो कुछ टाइम पहले, आई गेस 2 या 4 दिन पहले, नॉट 2 4 दिन पहले, 2 या 4 वीडियोस पहले, हमने एक ग्लेशियर्स का एक इमेज देखा था। इसी में दी ग्लेशियर्स हैड ट्रैप्ड एयर विच वाज लॉन्ग बैक। ठीक है। वो एयर बहुत पुराना था, उस एयर में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो भी बहुत पुराने थे। सिमिलरली एक पानी का जार ले लो जिसके अंदर कुछ बबल्स, स्मॉल बबल्स, पानी के, हवा के बबल्स ट्रैप हो गए हो, या अगर आपने कभी अपने मोबाइल पे, अपने लैपटॉप पे, अपने आईपैड पे एक स्क्रीन गार्ड लगवाया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा वहां पे एक बबल ट्रैप हो गया होता है। अब अगर वही बबल किसी पानी के जार में ट्रैप हो गया है और उस बबल पे कोई साउंड वेव हिट करती है, अगर आपके फोन के स्क्रीन गार्ड के नीचे बबल बन गया है तो वो जो स्क्रीन गार्ड लगाने वाला बंदा होता है वो क्या काम करता है, वो उस पर थोड़ी सी हीट लगा देता है, थोड़ा सा उसको हीट के नजदीक लेके जाता है एंड फिर उसको धीरे धीरे स्लाइड करता है एंड देन वो बबल गायब हो जाता है। सिमिलरली वंस अ साउंड वेव हिट्स दिस बबल विच इज ट्रैप्ड इन अ लिक्विड, ठीक है, ये बबल एक फ्लैश ऑफ लाइट प्रोड्यूस करता है। इस बबल से लाइट प्रोड्यूस होती है एंड दिस बबल सडनली एक तो इंक्रीज हो जाता है और उसके बाद पहले एक्सपैंड हो जाता है एंड देन सडनली कोलैप्स हो जाता है। वंस इट कोलैप्सेस, इसके कोलैप्स में ये जो बबल है ये इतना छोटा बन जाता है, कोलैप्स करते करते इतना छोटा बन जाता है कि इसका टेम्परेचर बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स, थाउजेंड्स केल्विन से बढ़ जाता है एंड देन इट वैनिशेस। ठीक है। होता क्या है असल में, ये जो गैस वहां पे थी, इस बबल में जो एयर ट्रैप होके रह गई थी, वो एयर आयोनाइज हो जाती है, वो एयर गायब हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है, और उसी आयोनाइजेशन में एक स्मॉल बीम ऑफ लाइट क्रिएट हो जाती है। ये ऐसी बात है जैसे आयंस आयोनोस्फियर से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं तो हमें वो थोड़े से दिख जाते हैं कभी कभी, कभी हमें वो मैसिव लेवल पे दिखते हैं, कहाँ पे, ऑरोरा में। ठीक है। तो अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ द गैस चेंजेस इनटू लाइट। दिस इज सोनोल्यूमिनेसेंस। अब ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? आपने देखा पिछली बार वैगल डांस पूछा यूपीएससी ने। ठीक है। दैट इज द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। और उससे पहले ओरंगेटन पूछा। ठीक है, कि एक जानवर है जो स्टिक की मदद से किसी पेड़ के अंदर खोदता है, वहां से इंसेक्ट्स निकालता है, फिर खाता है। ठीक है। वैसे ही और भी बहुत सारे जानवर्स का बिहेवियर पूछा है यूपीएससी ने एंड सिमिलरली देयर वाज वन मोर एनिमल जिसका बिहेवियर यहाँ पे सिमिलर है टू सोमोल्यूमिनेसेंस, दैट इज पिस्टल श्रिम्प। ये श्रिम्प होता है, इसके क्लॉज होते हैं, लाइक जो पंजे आगे के होते हैं, उस पंजे में एक छोटा सा ऐसा क्लॉ होता है जिसकी वजह से, जिसकी हेल्प से ये इतना जोर से पानी पे मारता है, उस पानी को इतनी तेजी से बहाता है, एक ऐसा जेट निकलता है पानी का जो बहुत ही तेज होता है, और वहां पे एक छोटा सा लो प्रेशर बबल्स क्रिएट होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है। और ये जो बबल्स है ये कोलैप्स हो जाते हैं आपस में। जो ही ये कोलैप्स होती है वहां पे एक साउंड का इफेक्ट क्रिएट होता है। आप ये साउंड का इफेक्ट सुन भी सकते हो, बट अगर आप इसके नजदीक रहे और उसने आपको हिट किया, उन एयर बबल से आपको हिट हुआ, तो आपको शायद इंजरी भी हो सकती है। दैट इज वाई यू आर लकी एंड अनलकी बोथ एट द सेम टाइम। ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड हाउ यूपीएससी यूजेस दीज कॉन्सेप्ट्स इन योर एग्जाम। वैगल डांस पिछली बार 2023 में पूछा गया था, तो मैंने एडिटोरियल्स भी दिखाए थे जहां पे वैगल डांस लिखा गया था। ओरंगेटन जहां पे पूछा गया था 2023 में,
सिमिलर डिस्कशन, सेम टाइप ऑफ डिस्कशन, सेम टाइप ऑफ वर्ड्स एडिटोरियल में आए थे, और इसीलिए मैं यहाँ पे भी हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को। तो कीप इट इन माइंड, ठीक है, कीप इट इन योर नोट्स. With this, I thank you and I wish you all the best for joining me in here in this discussion. Thank you once again. Have a good day ahead.